ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जूम सेशन आज का सबको अच्छा लगा रहेगा, आई होप सो। हम लोग ने ऑलरेडी जूम सेशन टुडे वाज नॉट फॉर लर्निंग। ओके, अच्छा पार्थ थी वो थोड़ा स्टूपिड है, ही वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो। ओके, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं था बिकॉज हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहा था अबाउट द पोर्शन। वी वर नॉट इन अ स्टडी मोड टुडे। ओके, स्टडी मोड एज वोटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, द बेस्ट थिंग व्हाट दे लाइक इज़ माई टेलीग्राम वीडियोज़ इटसेल्फ। सो स्टडी मोड हम लोग टेलीग्राम वीडियो पे ही कंटिन्यू करेंगे, सो दैट इवन एट द टाइम ऑफ एग्जाम इफ़ यू फॉरगेट एनी प्रैक्टिस सेट or any particular kind of a problem, you can search that particular video from the practice set number, the video code, and you can cross check that anytime whenever you required. It is just like having your tuition teacher as a genie right next to you to explain you any problem at any time whenever you require as per your convenience. बराबर। इसके लिए हम लोग टेलीग्राम वाला मोड नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे जो हर्षदा ने बोला है। ओके चलो, नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी डन 3.1, प्रॉब्लम नंबर 5 तक अपना हो चुका है। वी फिनिश दिस, व्हाट इज द लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्लासिफिकेशन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू अ लिटिल सीरियस प्रॉब्लम। ओके, राइट द पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 6। okay, write the given in the standard form. We have to convert into standard form, m cube plus 3m plus 5m. okay, standard form में you only have to rearrange in the decreasing order of the power of the polynomial. Okay, so the standard form will be m cube plus 5m plus 3. This is your answer. Okay, as per the problem. But for extra practice what I have done is I have converted the same thing again into index form and also coefficient form. Okay, extra practice हो जाएगा अपने लिए. So in the index form what is missing over here? M square is missing. Okay, so we have to include that. So index form will be m cube as it is, m square is missing part, so we will put it as plus 0 m square plus 5m plus 3 बराबर. Coefficient form we have to get the coefficient from the index form only. Coefficient of m cube is 1, m square is 0, m is 5 and constant is 3. Okay, so the coefficient form will be bracket, round bracket, 1 comma 0 comma 5 comma 3 bracket close. बराबर, समझ में आया coefficient form? Move to the next question. The next question is minus 7y plus y raised to 5 plus 3y cube minus 1 by 2 plus 2y raised to 4 minus y square. Now you have to convert this into standard form. Standard form में क्या करेंगे? We'll start with the degree of this polynomial, which is the highest power. Highest power is y raised to 5. So y raised to 5 will take first. Then which is the term with y raised to 4? Y raised to 4 term over here, 2y raised to 4. Okay, then we'll write it here, plus 2y raised to 4 plus 3y cube. Okay, then we need y square. Y cube के बाद क्या है? Y square term चाहिए. Y square term is minus y square. So this will come along with the sign. Don't leave the sign here. खाली y square नहीं लेना आगे. We have to bring it back with the sign. Okay, so this is minus y square. Then we have y का क्या है? The very first one, minus 7y. Okay, then y term we'll put it over here, minus 7y minus, then the constant term is 1 by 2. correct? देखो ध्यान से, y raised to 5, y raised to 4, y raised to 3, y raised to 2, y raised to 1 and y raised to 0. बराबर, everything is in the standard form. Now here since there are no terms missing, okay, the standard form and index form will be one and the same. कि कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है. बराबर, y raised to 5 से लेके y raised to 4, y cube, y square, y single, okay, and then y raised to 0. Okay, all the terms are available. Therefore the standard form and index form are the same for this particular problem. The standard form and index form are same. You have to write this. Okay, and from here again, since the index form is the same, how will we get the coefficient form? The coefficient form will be just bring the constants of or the coefficient of each of the variable. इसका क्या है? by default 1. if nothing is given then it means by default it is 1. okay, so 1 comma 2 comma 3 comma
-1 -7 -1/2 बराबर। सेम चीज़ लिखा है इधर, समझ में आया? 1 2 3 -1 -7 -1/2 दिस इज़ योर कोएफिशिएंट फॉर्म। समझ में आ गया? बट इन द प्रॉब्लम इफ इट कम्स इन योर एग्जाम एंड दे टेल यू टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, the problem ends only in one line. Okay, in standard form we are just rearranging it. It might come as a 1 mark question only. Okay, if it comes for 2 or 3 marks, then they will tell you give the standard form, index form and coefficient form of the given polynomial. Okay, ऐसा question रहेगा. So for every form they will give you 1 mark. लेकिन इतना easy भी पेपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, depends upon the school and द मूड ऑफ द टीचर। ओके, वैसे भी एफ की जो वो लेडी टीचर है, ज्योति टीचर, क्या नाम है उनका, वो बहुत अच्छी टीचर है। ओके, शी माइट गिव यू एन ईजी पेपर पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7। एक्सक्यूज मी। ओके बेटा, मत कर मस्ती बेटा। राइट गिवन पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, now they have given you some polynomials which you have to convert it and write it into coefficient form. Mark this question as very important, क्योंकि इसमें से एक तो भी टीचर तुम्हारा एग्जाम में डालने वाली है। ओके, द फर्स्ट कोएफिशिएंट गिवन इज x³ - 2। ओके, सो फॉर converting everything into coefficient form we have to first convert the given polynomial in index form. ओके, फर्स्ट कन्वर्ट इन इंडेक्स फॉर्म। देखो मैंने दिया इधर, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इंडेक्स फॉर्म। So index form will be x³ square term and x term, x⁻² and x⁻1 is missing. So we'll put it as plus 0x² plus 0x minus 2. Okay, so this is your index form. Short form में लिखा है मैंने, this is your index form. Okay, you have to write the complete handwriting, complete word, index form. Then coefficient form. Coefficient form will be, bring down the coefficient 1, 0, 0, -2. समझ में आया? This is your final answer. If they are asking for coefficient form, the problem will come only for 1 mark, but step has to be done. अगर ये इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा, इट्स प्रॉबेबली ओके, द प्रोबेबिलिटी और द पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग इज मैक्सिमम। सो डोंट डू दैट, फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टेप। जैसा सिखाया है वैसा करो। ओके, ज़्यादा टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट नहीं मारना, नहीं तो मार्क्स भी बच जाएगा तुम्हारे से। ओके, मार्क्स बोलेगा चलो मैं भी बच जाता हूँ, टीचर के पास ही रहता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5y। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? क्या है? मोनोमियल। ओके, करेक्ट। चलो बच्चे लोगों को कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। मतलब लॉकडाउन के अंदर पूरा ब्रेन लॉकडाउन नहीं हुआ है अभी तक। सो इंडेक्स फॉर्म, हाउ विल वी राइट दिस इंडेक्स फॉर्म? y है, y के बाद में कांस्टेंट टर्म है। ओके, इंडेक्स फॉर्म विल बी 5y + 0। ओके, 5y + 0। सो कोएफिशिएंट फॉर्म विल बी 5, 0 बराबर। इफ़ यू वुड हैव नॉट कन्वर्टेड इनटू इंडेक्स फॉर्म, देन ऑटोमेटिकली कोएफिशिएंट क्या लिखता था? 5 लिख के ख़त्म कर देता था। ओके, आंसर रॉन्ग होता एंड एक बड़ा अंडा मिलता था। So first always convert it into index form, and then from index form you have to derive the coefficient form. Don't go to coefficient form directly. 4 बार बोल दिया है अभी तक मैंने। कोई जो शॉर्टकट मारेगा ना उसको 5 टिक मारेगा फिर मैं सर में। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3, 2m⁻⁴ - 3m² + 7. Okay, this is your third problem. Convert first into index form. Index form में what is missing? m⁻⁴ है, m³ is missing and m⁻1 is missing. Correct. So we will put it as 2m⁻⁴ plus 0m³ - 3m² as it is. Since m term is missing, we will put it as plus 0m plus 7. Correct. Now this is your index form. Read it again. 2m⁻⁴ plus 0m³ - 3m² plus 0m plus 7. Okay. Coefficient form will be 2, 0, -3, 0, plus 7
ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया? मार्क दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नंबर 7 में। तो थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी लाइकली टू कम इन योर एग्जाम्स। ओके, एंड लास्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 4 इज -2/3, दैट इज ओनली कॉन्स्टेंट। ओके, नो एक्स टर्म, नो एक्स स्क्वायर टर्म, नो स्क्वायर टर्म, नो क्यूब टर्म, नथिंग, कुछ भी वेरिएबल है नहीं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज कॉन्स्टेंट। ओके, सो कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट इसका क्या रहेगा? दिस इज डायरेक्टली x⁻0। ओके, बराबर, वी नो दिस। कॉन्स्टेंट का वेरिएबल क्या रहता है? x⁻0। सो फॉरगेट इट, इसके आगे कुछ करने का नहीं है अपने को। कोएफिशिएंट फॉर्म यहाँ पर वी कैन टेक इट डायरेक्टली, बिकॉज इंडेक्स फॉर्म लिया भी तो -2/3 आएगा, -2/3, बिकॉज देयर इज नो x नो y, इट विल बी एज इट इज। देयरफॉर कोएफिशिएंट फॉर्म हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकता है, कोएफिशिएंट इज -2/3 सब and round bracket. Don't forget to write the round bracket. If you are not writing the round bracket, the rule is incomplete and you will get incomplete marks. 1 मार्क रहेगा तो टीचर आधा ही मार्क देगी, आधा मार्क ब्रैकेट के लिए जाएगा। बराबर, आधा मार्क अगर ब्रैकेट के लिए जाएगा ना तो बहुत पछताओगे कि इतना सिली मिस्टेक कैसा किया। तो करने का नहीं है, मैंने अभी से बता दिया है। नाउ वी हैव प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। The given polynomial is given in the coefficient form, you have to convert it into standard form. अभी तक हम लोग ने स्टैंडर्ड से इंडेक्स कन्वर्ट किया है, इंडेक्स से कोएफिशिएंट निकाला। now coefficient form has to be converted into standard form, that is now we have to calculate our brain, we have to run the brain calculation in the reverse direction. okay, the coefficient form is given as 1 2 3. okay, count the coefficient, कितना है? since the number of coefficient is 3, therefore the degree of polynomial will be degree of p, that stands for polynomial. okay, so the degree of polynomial is 3 minus 1, that is 2. okay, so accordingly we can write this as, इसका polynomial degree क्या रहेगा? 2. let's say the variable x. why? because 5th standard से हम लोग x ही करते आ रहा है। okay, so x अपना favorite है, so it will be x square 1x square plus 2x प्लस 3। वाई? बिकॉज दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर, तो माइनस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। 1 नहीं भी लिखा तो बाय डिफॉल्ट इट इज एक्स स्क्वायर ओनली। ओके, एक्स स्क्वायर इज बाय डिफॉल्ट 1 ही रहता है उधर। समझ में आया? दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड वन, दिस आई हैव पुट अ स्टार ओवर हियर, दैट मीन्स मार्क दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. If teacher will pick up any problem from this particular problem number 8, it is most probably will be this problem. Why? Because the coefficient given is 5 0 0 0 and -1. okay, count the coefficient. Since the number of coefficient is 5, कितना है? 1 2 3 4 5. therefore the degree of polynomial will be 5 minus 1, that is 4. so the first degree will be 5x raised to 4 plus 0x raised to 3. एक एक डिग्री कम करना है। 0x raised to 3 plus 0x square, that is 0x cube plus 0x square plus 0x minus 1 as it is. okay, and if you convert it into standard form, for writing it into standard form we'll have to remove all the zeros. I have done a cutting mark. You don't do this in your exams, this is only for you to understand. okay, तुमच्या समजण्यासाठी केलं आहे मी हे कटिंग, तुम्हाला करायचं नाही आहे एक्झाममध्ये. डोंट मेक द पेपर डर्टी. okay, directly bring down the term, that is 5x raised to 4. ये सब कैंसिल करो, -1. so the standard form of your polynomial will be 5x raised to 4 -1. समझ में आया? थोड़ा डिफरेंट है ये प्रॉब्लम, इसके लिए आई सेड दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट एंड दिस कुड बी पिक्ड अप बाय द टीचर टू पुट इट इन योर एग्जाम. लेट्स गो फॉर द लास्ट वन. द लास्ट प्रॉब्लम इज कोएफिशिएंट फॉर्म -2 + 2 -2 + 2. okay, how many number of coefficient? 1 2 3 4. since the number of coefficient is 4, therefore the degree of polynomial is 4 minus 1, that is equal to 3. बराबर, therefore standard form will be 3. अच्छा, 3 से चालू करना हमने वो क्यूब से, so it will be -2x cube plus 2x square minus 2x plus 2. बराबर, हमने वो क्या करना है? खाली इधर x cube x square x and constant as it is, यही फिलअप करके लिखना है. ओके, क्लियर? समझ में आ गया प्रॉब्लम? विल मूव टू प्रॉब्लम नंबर 9. ओके, प्रॉब्लम नंबर 9. आई हैव नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम नंबर 9 बिकॉज दिस प्रॉब्लम नंबर 9
is the only word problem which is coming in practice set 3.1, 3.2. 3.2 के अंदर you have more 3 word problem, but those are word problems of 1 mark. Yes, word problem of 1 mark. Okay, but this problem, this will come into your exam and it is bound to come. It has come all the time in the unit test as well as semester. Teacher लोग ये problem को छोड़ता ही नहीं है. Problem number 9 comes into your exam every time. So बाकी सब प्रॉब्लम्स आप लोग 5 टाइम्स कर रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम you are going to write this problem 10 times in your tuition book. Okay, because this is a diagram where you have to fill up. Okay, complete the chart आता है ना आपको हिस्ट्री इंग्लिश वगैरह में, वैसा ये complete the chart वाला प्रॉब्लम है. The photograph of this particular problem will be sent to you, because अभी तक हम लोगों ने जो 2-3 घंटा जितना लेक्चर सुना है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द कन्वर्जन, वो कितना आपको समझ में आया है दैट डिपेंड्स. यू ओनली हैव टू, दे हैव गिवन यू 6 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर देयर. यू जस्ट हैव टू पिक अप दोज 6 पॉलिनोमियल्स एंड राइट इट डिफरेंटली इन डिफरेंट बॉक्सेस, वेदर इट इज़ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर दूसरा क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. ओके, सो दिस फोटोग्राफ विल बी सेंड टू यू फ्रॉम द गाइड. यू हैव टू डायरेक्टली कॉपी द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द गाइड फ्रॉम द फोटोग्राफ्स इटसेल्फ एंड राइट इट 10 टाइम्स. ओके बच्चा लोग, बिलीव मी, द सेम प्रॉब्लम इज रिपीटेड अगेन इन योर 10th स्टैंडर्ड. सेम डायग्राम रिपीट होता है, सेम काइंड ऑफ कुछ उसके अंदर से पॉलिनोमियल्स चेंज किया है, बट द एंटायर फॉर्मेट रिमेन्स द सेम एंड दिस कम्स इन योर एसएससी बोर्ड ऑल्सो. अभी तक जब से 10th का पोर्शन चेंज हुआ है, इट हैज़ अपीयर्ड, दिस प्रॉब्लम हैज़ अपीयर्ड इन मार्च, अक्टूबर एंड अगेन ये मार्च में भी आया था. ओके, अभी अक्टूबर में आएगा ही, आई एम 100% श्योर. अभी तक हुआ नहीं है, जब भी होएगा, अगर अक्टूबर का एग्ज़ाम्स होता है तो. अब कोरोना की वजह से हो सकता है फेलियर, तो बच्चा है क्या करने गए, हो सकता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट उड़ा भी देगा कि भैया अक्टूबर का एसएससी हम लोग एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करेगा, डायरेक्टली मार्च में ही कंडक्ट करेगा. वेरी मच पॉसिबल. इफ़ यू डोंट कम अक्रॉस एनी पोटेंशियल वैक्सीन, अगर तब तक डिस्कवर नहीं होता है तो माइट भी पॉसिबल. लॉकडाउन भी एक्सटेंड होएगा. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीने के अंदर कुछ कंट्रोल नहीं हुआ. पर डे महाराष्ट्र में 10,000 प्लस न्यू केसेस आ रहा है. ओके, बॉम्बे का हालत तो और भी ख़राब है, उससे कम है बिकॉज बॉम्बे का एरिया भी कम है. महाराष्ट्र, बॉम्बे इज़ अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो जाहिर है नंबर्स कम रहेगा. बट इवन इन बॉम्बे रोज़ का 2-3 हज़ार केस तो आ ही रहा है. You can check the government website and the figures. ओके, तो मतलब कंडीशन तो इम्प्रूव नहीं होएगा. तो अक्टूबर लेना है या नहीं लेना है, या डायरेक्ट मार्च में लेना है, बिकॉज अक्टूबर में अगर एग्ज़ाम भी ले भी लो ना, तो भी फेलियर बच्चा लोग जो मार्च क्लियर नहीं कर पाया है, उसमें ऑलमोस्ट 90% बच्चा अक्टोबर भी नहीं क्लियर कर पाता है. ओके, ते म्हणतात ना, सगळे लोक म्हणतात बघा, आपली मोठी माणसं म्हणतात, घरचे आई बाबा वगैरे सगळे म्हणतात 10वी पास झालं तर झालं, अडकला तर मग अटकूनच राहतो माणूस. ओके, मुलगा जर फेल झाला, मुलगा काय मुली पण, ओके, इफ़ यू फेल इन 10th फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया तो हो गया, नहीं तो सेकेंड अटैम्प्ट में तो कोई नहीं होता है मोस्टली. फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटैम्प्ट ये चलता ही रहता है सिलसिला. समझ में आया? दैट इज़ द रीज़न वाई वो बच्चे लोग जो रिपीट आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मट्ठू रहते हैं. इसके लिए द 10th फीस मेरे पास क्या है, ऑल सब्जेक्ट अगर मैं 2,000 ले रहा हूँ, तो रिपीटर स्टूडेंट का मैं 3,000 लेता हूँ. सिखाना वही है, लेकिन उनके खोपड़ी में कुछ घुसता नहीं है, तो अपना खोपड़ी पूरा तोड़ना पड़ता है उनके खोपड़ी में घुसाने के लिए. इसके लिए मेहनत डबल हो जाता है, तो फीस डबल नहीं कर सकता है. इसके लिए फ़ीस, मैं अपना फ़ीस स्ट्रक्चर यू नो ऑलरेडी. 10th के लिए 2,000 रुपीज़, विच इज़ द लोवेस्ट फीस इन बॉम्बे. ओके, ऑल सब्जेक्ट का 2,000 कोई नहीं पढ़ाता है 10th स्टैंडर्ड को. साजिद सर पढ़ाते हैं माय नरिश एकेडमी में. ओके, और 10th में 3,000 हम लोग किसका लेता है, रिपीटर का. तो अभी बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई करो, पास हो जाओ. अगर तुम लोग रिपीट हो के मेरे पास वापस आएंगे तो 3,000 देना पड़ेगा. ओके, तो वो टाइम पे बहुत प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज अभी 9th का 1,500 टाइम पे नहीं आता है मेरा फीस. 3,000 का तो मैं सपना देख ही नहीं सकता है बराबर. 10th का बच्चा लोग जो रहता है, 10th का पोर्शन भी इससे डबल रहेगा 9th से. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. और मेरे को मालूम है अभी फ़िलहाल मेरे पास जितना भी 9th का बच्चा लोग है, ये सब अच्छा सिंसियर पढ़ने वाला बच्चा है, तो ये सब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाएगा, मेरे को मालूम है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग पासिंग मार्क्स फ्रॉम यू और पासिंग लेवल ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम यू. आई एम एक्सपेक्टिंग सबके सब 80% एंड अबव मार्क्स निकालेगा मेरा स्टूडेंट.
ओके अभी जो 9th में मेरे पास जितना भी बच्चा है, ये बच्चा लोग ने अगर 10th में 80% नहीं निकाला तो मैं इनको धोएगा, पास भी हुआ रहेगा तो भी धोएगा मैं इनको, 80% के ऊपर मार्क्स नहीं आया तो, ये याद रखना। ओके चलो, प्रैक्टिस सेट 3.1 इज़ ओवर, वी हैव टू स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 3.2। 3.2 के अंदर एज आई टोल्ड यू देयर आर वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके आई हैव नॉट रिटन द प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं लिले, आई हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। लेट्स सी। ओके द सोल्यूशन इज़ मोर और लेस जो भी दिया हुआ है गाइड में, इट्स एग्जैक्टली परफेक्ट, क्योंकि इतना छोटा सिंपल प्रॉब्लम है कि इसमें कोई गलती कर ही नहीं सकते। ओके ये प्रॉब्लम भले तुमको 9th में दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी देगा ना तो वो भी सॉल्व कर देगा इसको, इतना ईजी है ऑल द 3 प्रॉब्लम्स। दैट इज़ द रीज़न वाई दीज वर्ड प्रॉब्लम्स विल कम ओनली फॉर 1 मार्क। ओके द फर्स्ट प्रॉब्लम इज देयर आर ए नंबर ऑफ ट्रीज presently and every year the number of trees increases by number b. Okay so after x years how many trees will be there? Let's start. Let the number of trees present be a. Okay let बोलने का ज़रूरत नहीं है, the number of trees present is a, number of trees increasing every year is b, therefore the number of trees increasing in x year, 1 year के अंदर b है तो x years में कितना रहेगा, x into b बराबर number of trees increasing in x years will be bx, b into x or bx. Okay therefore total number of trees after x years in the village will be the total number of trees increased, और जो अभी जो present tree है उसको प्लस करना ही पड़ेगा ना। so this is a and this is bx as per our statement. so the final answer is the total number of trees after x years will be a plus bx. This is your final answer बराबर। so that is the reason why this word problem will come only for 1 mark. The next one is in one row there are y number of students standing, और ऐसा similarly there are x number of rows in a parade. so what are the total number of students that have participated in the parade? okay number of student in each row is y, number of rows in parade is x, therefore total number of student will be y into x, that is equal to xy. अभी xy लिखो या yx लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं बोलना स्कूल के टीचर ने yx लिखा था, yx लिखो या xy लिखो। स्कूल का टीचर भी इतना डम्बो नहीं है कि वो आगे पीछे लिखेगा तो तुम्हारा मार्क्स काटेगा, टीचर देगा करेक्ट बराबर। नाउ द थर्ड वन, ओके दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसके अंदर लास्ट ईयर हर्षदा और पार्थ दोनों भी बहुत कंफ्यूज था बराबर। I think you will remember we have done similar kind of problem in, किसमें किया था हम लोगों ने, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में किया था, तुम्हारे इसमें प्रोपोर्शन करके कोई लेसन था उसमें किया था। When I read the problem you will automatically understand. Now there is a given number, in the number the unit in tens place is m. Okay the unit in the 10 place is, tens place is m, and the unit in the number in the unit place is n. Okay so find the number. किया है ना ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम? हर्षदा डू यू रिमेंबर, पार्थ, नसरीन डू यू रिमेंबर? ओके ठीक है, यू आर नॉट इन माई ट्यूशन इन प्रीवियस ईयर, लेकिन प्रॉब्लम तो किया है ना। ओके द नंबर इन टेंस प्लेस, सोल्यूशन स्टार्ट इन द गिवन नंबर। ओके इन द गिवन नंबर द नंबर इन टेंस प्लेस इज m, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द नंबर इन टेंस प्लेस क्या रहेगा, वैल्यू विल बी 10 into m, that is 10m. okay the number in unit place is n, therefore the value of number in unit place will be n into 1. unit place का वैल्यू क्या रहेगा 1, टेंस के प्लेस में जो नंबर है उसका वैल्यू विल बी दैट नंबर into 10, करेक्ट। so therefore the number will be, required number will be, we have to add the values to get the number, therefore the required number is 10m plus n. समझ में आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। 1 मार्क के लिए आएगा ये तीनों भी 3.2। ओके ये एकदम इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड दे हैव गिवन इज ऐड द पॉलिनोमियल्स। देयर आर गिवन 2 different polynomials, add. We have done similar thing in our 8th standard also. Add the equation, add the given equations. It may be quadratic, it may be cubic, it may be anything. We have already done that. Okay equation किया हम लोग ने प्लस करने का। I hope you will automatically understand when you will read the statements in between lines.
Okay, the first number given is, first polynomial is x cube minus 2x square minus 9, and the second one given is comma है, तो मतलब ये इक्वेशन इधर खत्म हो गया polynomial. The next polynomial is 5x cube plus 2x plus 9. This is the problem given in your textbook. Solution starts here. पहला write down both the numbers with brackets and बीच में बड़ा प्लस का साइन डालो. Why? Because we are adding these two polynomials. Okay. The next step is opening the brackets. Opening the bracket, there is no changes in the first bracket, or there is no changes in the second bracket also. It is plus. Okay, so we write it as x cube minus 2x square minus 9 plus 5x cube plus 2x plus 9. What will be the next step? Rearranging like terms, similar terms ला एका बाजूला कलेक्ट करायचं. ओके, हमारा स्कूल के असेंबली में भी करता है ना, बॉयज़ का लाइन अलग, गर्ल्स का लाइन अलग. सिमिलर टर्म्स, सिमिलर लोगों को अलग करो, सिमिलर यूनिफॉर्म्स अलग, बराबर वैसा. रीअरेंजिंग द लाइक टर्म्स, वी हैव एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x. ओके, माइनस 2x स्क्वायर है, दूसरा कोई स्क्वायर टर्म है नहीं है, दूसरा x टर्म है. सो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x. देन वी हैव माइनस 9 एंड प्लस 9, माइनस 9 प्लस 9, they will get cancelled automatically. Okay, then we have x plus 5, that will be 6x cube minus 2x square plus 2x as it is, because there is no similar terms for cancellation or subtraction. Okay, your final answer comes as 6x cube minus 2x square plus 2x. Clear hai? Next problem. Next problem, the polynomial given is minus 7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2. Okay, and the next one given is, so instead of writing again and then again making brackets, since I am using a small diary, not a long book, I am facing a shortage of lines over here. Okay, हम लोग लॉन्ग बुक यूज़ करता है ट्यूशन में, तो आप लोग इसलिए मैंने इधर क्या किया है, मैंने क्वेश्चन अलग से नहीं लिखा है, क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट किया है. this polynomial I put it into brackets and I started. Okay, minus 7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2 bracket close plus the next polynomial is 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6. This is the problem second. Okay, start opening the brackets. Opening the brackets, we get minus 7m raised to 4 plus 5m cube plus root 2 plus, open the second bracket, 5m raised to 4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6. Okay, so you got this. Next step will be rearranging like terms. minus 7m raised to 4, इसके साथ में like terms क्या है, plus m raised to 4, 5m raised to 4. Okay, एक साथ हो गया. Then cube term, 5m cube minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6 plus root 2. Okay, हो गया. Now operate. minus 7m raised to 4 plus 5m raised to 4, we can cancel. Minus 2m, when you add two numbers of different sign, ignore the sign and subtract the smaller number from the greater number and give the sign of the greater number to the answer. This rule we have studied in lesson in equation, introduction to equation. नंबर लाइन के लिए हम लोग ने ये किया था in standard 6 स्टैंडर्ड में. ये रूल था, याद है, लिखाया था मैंने बच्चे लोग को 20 टाइम्स ये रूल. 10 तक भूलना नहीं, मैंने बोला था. ओके, अच्छा तुम लोग नहीं था वो टाइम पे, क्योंकि अपना ट्यूशन चालू हो गई 2 साल हुआ है, 3 साल सॉरी, दिस इज 3rd ईयर रनिंग. 3rd ईयर कैन नॉट बी काउंटेड. लॉकडाउन के अंदर क्या काउंट करने का, बराबर. प्लस 5m क्यूब माइनस 3m क्यूब, बराबर. लाइक टर्म्स अरेंज किया, वी कैन कैंसिल दिस. अगेन वी गेट 2m क्यूब प्लस, then we have 2m square, nothing to cancel, bring it down as it is, plus 3m, bring it down as it is. Now just focus here. When you are doing the polynomials at that time, automatically confusion में बच्चे भूल जाते हैं.
-6 प्लस √2 विल ऑलवेज बी -6 प्लस √2 ओनली। लेकिन यहाँ इतना कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि जिन्होंने सर्ड्स का लेसन नहीं किया है, रियल नंबर्स, जैसा कि आपके स्कूल टीचर ने गलती किया है, they haven't covered the lesson number 2 and they are starting with lesson number 3, so students are bound to make a mistake as -6 plus √2 will be -6 √2 लिख देगा वो लोग. ओके, यू शुड नेवर राइट दिस. बाय कन्फ्यूजन लिख ही देता है, बिकॉज जब लेसन नंबर 2 पढ़ा ही नहीं है, सर्ड्स कवर ही नहीं हुआ है, तो ये रूल इतना क्लियर नहीं है दिमाग में. और पॉलिनोमियल के कन्फ्यूजन के अंदर एम क्यूब ये सब करते करते हुए रूट साइन का ऑपरेशन का हम लोग रूल्स भूल जाता है, एंड वी राइट इट -6 √2. ओके, तो ये दिस इज द चांस वेयर मैक्सिमम पीपल गो रॉन्ग. बट सिंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, माई स्टूडेंट्स विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट ये -6 प्लस √2 करेगा. इफ अ रैशनल नंबर इज एडेड टू द irrational number, automatically the answer will be irrational and it has to be written with a plus sign only. We cannot write it directly, वो multiplication हो जाएगा. Okay, so your final answer comes to be -2m raised to 4 plus 2m cube plus 2m square plus 3m minus 6 plus √2. Final answer, problem solved. Okay. अच्छा, we have problem of subtraction also. अरे ये सेकेंड है तो पहला किधर गया? ओके, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया. हाँ, पेज चिपक गया रहेगा. आई स्टार्टेड द प्रॉब्लम ओवर हियर. ओके, सॉरी, एडिशन के अंदर वी हैव वन मोर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3. एडिशन वी हैव ऑलरेडी डन 2. वी हैव मोर थर्ड वन, द लास्ट प्रॉब्लम फॉर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट इज 2y² plus 7y plus 5. दिस इज फर्स्ट पॉलिनोमियल. देन प्लस 3y plus 9 bracket, that is again second polynomial. Okay, then third polynomial is 3y² minus 4y minus 3. प्रॉब्लम देख लो ध्यान से, समझ में आ रहा है? दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 3. सो विल स्टार्ट ऑपरेशन ओपनिंग द ब्रैकेट्स. ओपन करके क्या हो जाएगा? 2y² plus 7y plus 5 plus 3y plus 9 plus 3y² minus 4y minus 3. Okay, when I am reading this, you just pay attention to the number that I am counting and focus on whatever I am reading. Okay, और नंबर पे नज़र रहना चाहिए पॉलिनोमियल के ऊपर. इफ़ यू आर नॉट लुकिंग एट द पॉलिनोमियल एंड फोकसिंग ओनली ऑन वॉट एवर आई एम रीडिंग, खाली मेरा वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहा है, तो यू विल ऑलवेज गेट अ डाउट. अरे सर कुटली भाषा बोलता है, कौन सी भाषा में बोल रहा है सर? ये कौन सा भाषा है? 2y² plus 7y plus 5 plus 3y plus 9 प्लस 3y² माइनस 4y माइनस 3 बराबर. ये कभी समझेगा व्हेन यू आर अटेंटिव इन योर क्लास ड्यूरिंग द लेक्चर. और तुम इधर देखेगा जहाँ मेरा पेन, वेयर माई पेन निब इज रनिंग. ओके, आफ्टर दिस स्टेप व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हर्षदा खूप जोरात बोलायची तू लास्ट ईयर. रीअरेंजिंग लाईक टर्म्स. ओके, सो अभी सिमिलर